and I also share where you got the solution of this sheet. Okay, so let me share the screen. So this is your sheet number 6 where you have to solve the four question. Okay, question number 1. This question I already show you how you solve in previous lecture. And this top view, sorry, front view and top view is given. You have to draw the side view of this. So but you have to draw all these. Okay, front view, top view means you have to draw these two, and side view you don't have to only draw the side view, you have to draw all three view. Then only your solution is complete. Similarly, from here, front view, top view is given, and left hand side view you have to draw. Same question, front view, top view is given, and you have to draw the side view. The direction of side view is here also given. And front view, side view is given, you have to draw the top view. Okay, and where you get the solution? Sir, we have to draw only solution. Yeah, you have to draw only the solution, but I show you where you got the solution, because all the solution PDF I already share to you. Okay, so for the missing view, because your 6 unit is based on the missing view, so here you can see you got the, this is your problem number 1, solution of problem number 1. Then what is the solution? Solution is these three view. This is your solution for the first question, first problem in the 6, sheet number 6. See, first problem solution is that one. Okay, this is your second problem. So your second problem solution is here. This one is solution of your second problem. Okay, and similarly you see third problem, and where is your third problem? You can see this is your third problem. 1 2 3 is same in this, in the your missing view problems. 1 2 3 as it is your sheet number 6, problem number 1 2 3 is same. And the fourth problem is here, where problem number 6 is your fourth problem. So there is a solution for that. Okay, you have to draw the three view. Two view is already given, and you have to draw the top view only. Okay, by the solution is given.
Okay, now about your sheet number 7. So sheet number 7, so an angle plate, this is your angle plate. Okay, so what happened, see, this is your front view and this is your top view. So what happened in top view, this there is a hole, okay, circular hole. But what happened, this circular hole is look like a ellipse, look like a ellipse, and we have to draw its auxiliary view where this hole is show its true shape and size. True shape and size. Okay, so what happened, I already told you how to draw the auxiliary view. So what happened, this is your 60 degree, so we have to draw a parallel line to this line, parallel line to this line. Okay, so and after that you draw the projection and you get the solution. So I show you where the solution of this question. These PDF I already shared to you. You just go through these PDFs and get the solution. Okay, sir. Okay, so here, सर yes, सर जो आपने मतलब शीट नंबर 5 है ना, उसका प्रॉब्लम जो फर्स्ट है ना, उसका हाँ, मतलब आपने लेक्चर में थोड़ा अलग ड्रॉ करके दिखाया था, और आपने जो सॉल्यूशन नहीं, दे लेक्चर वो अलग है। में ड्रॉ कैसे हुआ था, वहां पे 20 डायमीटर, एक्चुअली प्रॉब्लम में 20 डायमीटर दिया हुआ, वो रॉन्ग था, तो मैंने 20 के हिसाब से ड्रॉ किया था, अकॉर्डिंग टू 20 ड्रॉ किया था, लेकिन एक्चुअल वो डायमेंशन कितनी थी, 40 थी। यस सर, उसकी वजह से वो गलत आ रहा था ना। हाँ, उसकी वजह से वो गलत आ रहा था। तो सर तो और मैंने अब सर बाद में, आपने वो क्वेश्चन नहीं यूनिट बाद टेस्ट में, लिया था, उसमें भी वही था ना, हाँ, मतलब उस उधर भी गलत था। हाँ, वो एक्चुअली क्या कहते हैं, मैंने प्रॉब्लम जो सीट में दिया था वही उठा के मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में दे दिया था। लेकिन क्या है कि जब मैंने आपके सामने उसको ड्रॉ करने लगा तो 20 से वो रॉन्ग आ रहा था ना, उसीलिए तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये 20 नहीं 40 है, ये मिस प्रिंट है यहाँ पे। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब हमको पता चलता है ना कि ये मिस प्रिंट है कि नहीं है, जो डायमेंशन है वो करेक्ट है कि नहीं है, वो तभी पता चलेगा ना बेटा, जब हम ड्रॉ करेंगे। तो तो सर यस जब अब सर। मैं ड्रॉ हाँ, तो जब मैं ड्रॉ कर रहा था तभी मैंने आपको बोला ना कि ये 20 रॉन्ग डायमेंशन है, यहाँ पे 40 होना चाहिए। ओके, तो वो डायमेंशन आप अगर 40 करके देखेंगे तो वो आपका इजी होगा। आई विल शो यू दैट। सर फिर वो आपने ड्रॉ करके दिया है, फिर वो राइट है या रॉन्ग है? सर वो राइट है, हाँ, क्या आपने दिया वो राइट है? नहीं, जो मैंने दिया है ना सोल्यूशन, शीट नंबर 5 का जो सोल्यूशन आपको दिया है ना, वो करेक्ट है। जो आपको ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है वो सर करेक्ट है। सर उस दिन वो आपने ड्रॉ करके दिया, फिर वो रॉन्ग है क्या? हाँ, वो इसलिए रॉन्ग है क्योंकि मैंने 20 के हिसाब से ड्रॉ किया था। फिर मैंने आप लोगों को बोला भी था ना कि ये क्या कहते हैं कि जो सीट है इसमें क्या कहते हैं कि वो आपका 20 जो दिया हुआ है वो रॉन्ग है, आप 40 के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। वेयर इज द शीट, सीट नंबर 1 to 5।
ये सीट नंबर यहाँ पे देखिए, ये 20 है, ये 20 रिटर्न है, बट इधर ये 20 नहीं है, ये आपका 40 होना चाहिए। ये डायमेंशन, दिस डायमेंशन मस्ट बी 40। यहाँ पे ये देखिए, ये डायमेंशन आपका रॉन्ग है, यहाँ पे 40 होना चाहिए, और इसको अगर 40 लेकर के ड्रॉ करेंगे देन योर सोल्यूशन इज राइट। तो ये आपका जो मैंने आपको शो किया हुआ है, ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, सीट नंबर सोल्यूशन ऑफ ओके सोल्यूशन 2। ये देखिए यहाँ पे ये कितना है, ये देखिए 40 डायमीटर, तो ये जो है ये भी 40 होगा, है ना, ये यहां से यहां तक ये आपका 40 ही होगा। तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप 40 का ड्रा करोगे और ये डिस्टेंस सेम ही है, तो ये क्या कहते हैं कि आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मतलब क्या कहते हैं कि इसका प्रोजेक्शन इस 40 से मैच होना चाहिए। जस्ट मिनट, आई विल शो यू। आई ओपन द पेन। सर इसका साइड व्यू नहीं ड्रॉ करना था क्या, मतलब? नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं ना। मैंने क्या, इसमें आपको जब मैं ड्राइंग पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला कि हम मिनिमम व्यू ड्रॉ करते हैं जिससे हमको सारी डायमेंशन पता चल जाए, है ना। वी हैव टू फाइंड दी ऑल दी डायमेंशन, और टू व्यू से हमको सारी डायमेंशन मालूम हो जा रही है, तो हमको साइड व्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द साइड व्यू। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी अगर हमने, ये देखिए, इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये इसके प्रोजेक्शन के इक्वल रहता है ना, ये देखिए, तो ये दोनों 40 आएंगे, दिस इज 40। बट प्रॉब्लम में क्या है कि ये 20 दे दिया गया है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो डायमेंशन यहाँ पे सारी आपकी गिवन है, ये वाला 20 है, ये वाला 40 है। तो यहाँ पे देखिए ये 20, दिस इज 40, दिस इज 40, ये टोटल डायमेंशन यहाँ पे देखिए मेजर करके। तो उसके अकॉर्डिंग ये 20 देने की वजह से मैंने 20 कंसीडर करके ड्रॉ किया था, इसलिए उसका प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकला था वो प्रॉपर नहीं निकला था, दैट इज रॉन्ग सोल्यूशन निकला था वो। तो वो मैंने आपको मेंशन भी किया था कि यहाँ पे ये 20 जो डायमेंशन दिया है दैट इज रॉन्ग, देयर मस्ट बी 40। सो आप लोगों को मैं पहले ही बोला था कि डायमेंशन कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डायमेंशन कैलकुलेशन आपका करेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि शेप लगभग शेप वैसा आएगा, लेकिन क्या है ना कि उसका शेप साइज आपका प्रॉपर नहीं दिखेगा जैसा दिखना चाहिए। तो ये आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अभी किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था, तो मैंने उसको करेक्ट करके सेंड किया था कि ये आपका क्या कहते हैं कि जो सोल्यूशन है वहां पे 20 की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है कि जो टॉप में सर्कल है वो 40 का है और उधर 20 दिया है, दैट इज द प्रॉब्लम। सो ये रहा आपका सीट नंबर 7 का फर्स्ट प्रॉब्लम। सो ये देखिए, ये आपका क्या कहते हैं कि सेम प्रॉब्लम इधर है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो डायमेंशन दिया हुआ है इसको सॉल्व अगर करना है तो आपको इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। सॉरी,
ये जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और फिर यहां से आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे प्रॉपर, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, यानी आपको सिर्फ इतना ड्रॉ करना है। ओके, इसके एक्स्ट्रा ड्रॉ नहीं करना है। तो ये देखिए नीचे जो इसका सोल्यूशन है सेम वैसा ही है, क्या कि ये जो x1 y1 ये किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। उसके बाद हमने क्या किया कि यहां से हमने इस x1 y1 के पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 by 1 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सो यहां पे क्या किया है कि ये देखिए 1 1 3 2, ये क्या है आपका कि हमने जो सर्कल है ना, सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आप यहां पे इन्होंने 12 पार्ट में डिवाइड किया है, आप 6 और 8 में भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कम पॉइंट्स लेकर के। सो लेकिन आपका जितना ज्यादा पॉइंट रहेगा, मैक्सिमम पॉइंट रहेगा, देन क्या होगा वो कि आपको उतना अच्छा यानी उतना गुड शेप में आपको सर्कल मिलेगा। ठीक है ना, जितने कम पॉइंट रहेंगे आप सर्कल को 4 पॉइंट में भी डिवाइड कर सकते हैं, कितने में 4 पॉइंट में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या फिर वो आपका प्रॉब्लमेटिक होगा कि वहां पे आपको सर्कल का जो शेप रहेगा वो प्रॉपर वे में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है कि ये आपका ये 2 व्यू इज गिवन, दिस 2 व्यू इज गिवन फ्रंट एंड टॉप। फिर यहाँ पे हमको एक ऑक्सिलरी व्यू दिखाना है जिसकी वजह से ये देखिए यहाँ पे क्या सर्कल इलिप्ट में कन्वर्ट हो गया है ना, टॉप व्यू में सर्कल इलिप्ट में कन्वर्ट हो गया। सो हमको क्या कहते हैं कि ऑक्सिलरी व्यू यहाँ का दिखाना है, यहाँ का। ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो ऑक्सिलरी व्यू हम दिखाएंगे, ये देखिए इसके पैरेलल लाइन रहेगा और यहां से हम ड्रॉ करते जाएंगे लाइन, और हमको यहां तक केवल इतना ही फेस दिखाना है। उसके बाद आप को क्या करना है, ये देखिए पॉइंट, आपको ये सारे पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये सारे पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सारे पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन्होंने एक्स वाई लाइन ड्रॉ नहीं किया है, तो आपको एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है ना, तो एक्स वाई लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक्स वाई लाइन से जितनी डिस्टेंस पे ये सारे पॉइंट हैं आप बस वो मेजर करते जाएंगे। ठीक है ना, एक्स वाई लाइन है तो ये जितने सारे पॉइंट आपको मिल रहे हैं ना, अभी ये पॉइंट आपको कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपने यहां पे लिए हैं ना, तो ये पॉइंट आप प्रोजेक्ट करोगे तो ये सारे पॉइंट आपको इस लाइन पे मिल जाएंगे। देखिए सेलेक्ट, यहां पे इन्होंने मैंने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ क्या करेंगे, यहां पे इसको हम पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जितने भी पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ठीक है ना, ये देखिए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये जो इलिप्स है इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 8 पार्ट में। तो अब यही जो है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, है ना, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ये सारे पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे। तो ये 8 पॉइंट हमको इस लाइन पे मिलेंगे, कहाँ पे, इतनी लाइन पे, जितना भी डिस्टेंस है आपका
उस लाइन पे हमको ये 8 पॉइंट मिल जाएंगे डैश में, है ना, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 8 डैश। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया है उसमें इसने कितने पॉइंट लिए हैं, 12 पॉइंट लिए हैं। तो आप 8 भी ले सकते हो, 8 सफिशियंट, 12 ले लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमको प्रॉपर सर्किल मिल जाएगा, प्रॉपर सर्किल मिल जाएगा, है ना। अभी देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये लाइन, फिर ये पॉइंट, देन ये पॉइंट, है ना। तो ये सारे पॉइंट आप ड्रॉ करते जाएंगे तो आपको ये पॉइंट सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। और सेम पॉइंट आप यहाँ पे जो पैरेलल लाइन, इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सारे गिराते जाइए, है ना। फिर क्या करेंगे कि आपको ये सारे पॉइंट कैसे मिलेंगे, यहाँ पे लिया हमने और ये पॉइंट का डिस्टेंस लेते जाएंगे। इसके वो कंपास लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर किया, फिर यहाँ से ये कट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर किया, फिर कट कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया, कट कर दिया उसके पर्टिकुलर प्रोजेक्शन पे। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट जब हम मिलाएंगे तो हमको एक सर्किल मिल जाएगा। ओके, और ये जो आपका स्क्वायर शेप है, ये देखिए ये रेक्टेंगल शेप है, ये तो आपको गिवन है। ये देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल हम ऐसा ही ड्रॉ कर लेंगे और उसके बीच में आपको ये सर्कल मिल जाएगा। सोल्यूशन इज देयर। सो योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन तो काफी इजी है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम ही है शायद इसमें। दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 9। योर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ शीट नंबर 7 इज प्रॉब्लम नंबर 9 एंड second problem is your first problem. See here, first problem is your second problem. Okay, so ये सारे क्या कहते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स हैं, और जो ये सारे पीडीएफ जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है, ये आपको इसमें से सोल्यूशन मिल जाएगा उसका, सारे प्रॉब्लम्स का। ओके, तो अभी आपका सीट नंबर 8, सीट नंबर 8 में ये देखिए प्रॉब्लम्स है। ड्रॉ एनी ऑफ 3 फ्रॉम बिलो बाय कन्वेंशनल ऑफ रिबेट। तो ये आपका 6 है, ठीक है ना। तो इधर आपको रिबेट्स ज्वाइंट शो करने हैं। ये देखिए सिंगल रिबेट बट ज्वाइंट, डबल रिबेट बट ज्वाइंट, डबल रिबेट बट ज्वाइंट विथ जिगजैग। ओके, सिंगल रिबेट लैप ज्वाइंट, डबल रिबेट लैप ज्वाइंट, डबल रिबेट लैप ज्वाइंट विथ जिगजैग। तो एनी 3 आपको इसमें से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन कल ही मैंने शो किया था, फ्री हैंड ड्राइंग में मिलेगा, ठीक है ना। तो फ्री हैंड ड्राइंग में रिपीटेड ज्वाइंट में जाएंगे। ये देखिए आपका रिपीटेड ज्वाइंट है, सिंगल डबल, है ना, सिंगल डबल, ये लैप है। ये कौन सा ज्वाइंट है, लैप ज्वाइंट है। ये देखिए सिंगल लैप ज्वाइंट, डबल लैप ज्वाइंट, जिगजैग लैप ज्वाइंट। सो यहां पे देखिए सोल्यूशन, तो ये सिंगल लैप ज्वाइंट, डबल लैप ज्वाइंट, एंड दिस इज योर डबल लैप ज्वाइंट विद जिगजैग। एक रिपीट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। ये क्या, जिगजैग पोर्शन में आपको रिबेट्स इंस्टॉल किए रहते हैं। देखिए 1 2 3 4। ओके, लेकिन अगर यहां पे आप देखेंगे, सी हियर, यहां पे कितना है, 1 2 3
4 5 6, यहाँ पे 6 रिबेट है। और जिगजैग मोशन में यानी जिगजैग पोजीशन में अगर हम रिबेट ड्रॉ लगाते हैं तो हमको 1 2 3 4 5 एक रिबेट हमको कम लगाना पड़ता है। इसलिए जिगजैग हमको ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। अगर हमारा शीट को लैप ज्वाइंट दे रहे हैं देन क्या हमारा एक रिवेट शेप हो रहा है अकॉर्डिंग टू जिगजैग। सो यहां पे आपने देखा कि लैप ज्वाइंट गिवन है और ये आपका बट ज्वाइंट है। दिस इज योर बट ज्वाइंट, दिस इज नॉट लैप ज्वाइंट, दिस इज योर बट ज्वाइंट। सो यहां पे देखिए आपका दिस इज योर सिंगल बट ज्वाइंट, सिंगल रिवेट बट ज्वाइंट, front view, top view, front view and top view. Okay, both you have to draw in free hand. This is your single rivet butt joint. This is your double rivet butt joint. Okay, so ये आपको given है। देन कोई भी 3 आपको ड्रॉ कर लेना है। देन ड्रॉ एनी 3 फ्रॉम द बिलो। दिस इज अबाउट द बेल्टेड ज्वाइंट। सो यहां पे सॉल्यूशन देखिए, बेल्टेड ज्वाइंट, ये देखिए यहां पे आपको सारे बेल्टेड ज्वाइंट मिल जाएंगे। तो एनी 3 बेल्टेड ज्वाइंट आपको ड्रॉ करना है आउट ऑफ 6। फिलेट बेल्ट, स्पॉट बेल्ट, डबल बट बेल्ट, सीम बेल्ट, आई फाउंडेशन बोल्ट एंड लुइस फाउंडेशन बोल्ट। तो इसमें से कोई भी 3 आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाउंडेशन बोल्ट भी आपको दिया हुआ है। ये सारे बट बिल्डिंग ज्वाइंट है तो यहाँ पे आपको ज्वाइंट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए फाउंडेशन बोल्ट्स आपको ऊपर मिल जाएगा। ये फाउंडेशन बोल्ट्स हैं, देखिए लेविस फाउंडेशन बोल्ट एंड आई फाउंडेशन बोल्ट। तो यहाँ पे देखिए यही प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, क्या आई फाउंडेशन बोल्ट एंड लेविस फाउंडेशन बोल्ट। सो आउट ऑफ दीज 6 आपको कोई भी 3 ड्रॉ करना है, ड्रॉ एनी 3। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, ड्रॉ एनी 1। इसमें सिर्फ एक आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको आउट ऑफ 6 ये आपको 1 कोई ड्रॉ करना है। मफ कपलिंग है, प्रोजेक्टेड फ्लैट कपलिंग है, फ्लेक्सिबल फ्लैट कपलिंग है, यूनिवर्सल ज्वाइंट कपलिंग, पुली एंड वी वेल्ट। सो इसमें से कोई एक ड्रॉ करना है आपको, एनी 1। सो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको मफ ड्रॉ करना है देन दिस इज योर सॉल्यूशन, एनी 1। ओके, split muff coupling, this is your solution. You don't need to draw this, ये आपको नहीं ड्रॉ करना है। You don't draw this, you only draw these 2। ओके, सो ये आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है। मींस क्या है कि फ्री हैंड ड्रॉ करना है, लेकिन आप स्केल का यूज कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को उतनी प्रैक्टिस नहीं है ना, क्योंकि इतना ड्राइंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिस नहीं है। देन यू हैव टू यूज स्केल फॉर द प्रॉपर शेप एंड साइज, फॉर द प्रॉपर शेप एंड साइज, ठीक है ना। तो ये है
नेक्स्ट फ्लेक्सिबल फ्लैच कपलिंग, तो यहाँ पे आपको देखिए कपलिंग सारी दी हुई है, तो इसमें ये सोल्यूशन दिया हुआ है, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस, यू हैव टू ड्रॉ दिस एंड अदर जो भी है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप उसको भी बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मफ कपलिंग एंड फ्लैच कपलिंग आपको गिवन है, मफ कपलिंग, प्रोटेक्टेड फ्लैच कपलिंग, फ्लेक्सिबल फ्लैच कपलिंग, यूनिवर्सल ज्वाइंट, पुली एंड वी बेल्ट, ठीक है ना। तो आपका जो सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है एंड सिक्स है, अगर इसमें से आपको ड्रॉ करना है देन आई गिव द डायग्राम ऑफ दैट कपलिंग टू, ओके। देन ये देखिए इसमें आपको सारे सिंबल्स ड्रॉ करने हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू ड्रॉ ऑल दीज 6। सो उसके लिए भी आपको इसमें से सोल्यूशन मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो आपका लास्ट पेज है सिंबल्स, ये देखिए यहाँ पे सारे मटेरियल के कन्वेक्शन दिए हुए हैं, तो ये 1 बाय 1 आपको ड्रॉ कर लेना है जो भी यहाँ पे आपको गिवन है। कंक्रीट, ग्लास, पैकिंग मटेरियल, वाटर, लिक्विड, वुड, स्टील, कास्ट आयरन, सो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका क्या 1 to 5 ऑलरेडी कई बच्चों ने किया हुआ है, और 6 to 8 का सोल्यूशन आपको मैंने पीडीएफ सारे शेयर किए हुए हैं, जहां से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, वहां से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। सो आपका क्या कहते हैं कि पूरे 8 शीट शेयर हो चुके हैं, आप लोगों को जस्ट कंप्लीट करके सबमिट करना है, ओके। सो और मैंने और सारे क्वेश्चंस, हाँ एनी क्वेश्चन? सबमिशन डेट क्या है? सबमिशन डेट तो 3 तारीख है, लेकिन अगर आप 5 तक भी कर देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों का माइक्रो प्रोजेक्ट का जो ओरल होना है वो 6 के पहले ही रहेगा, 1-2 दिन में मैं डेट डिक्लेयर करने वाला हूं, क्योंकि ऊपर से जो एचओडी सर है उनका ऑर्डर है कि 8 के पहले, 8 जून के पहले आपका क्या कहते हैं कि माइक्रो प्रोजेक्ट का ओरल कंप्लीट होना है। तो मैं आपको डेट प्रोवाइड करूंगा, उसके अकॉर्डिंग 1 by 1 ग्रुप ऐड होगा और क्वेश्चन आंसरिंग होगी उस पे ओरल टाइप में, आपके माइक्रो प्रोजेक्ट के बेस पे ही क्वेश्चनिंग रहेगी, ठीक है ना। उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये सर सारे आपने जो क्वेश्चन सर हाँ, आपने जो बोलिए। क्वेश्चन पेपर सेंड किए उसमें से क्वेश्चन आएंगे के पेपर को 6-7 नहीं, क्वेश्चन के ना? उसमें से आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। मैंने जो क्लास में पढ़ाया हुआ है वो सारी पीपीटी मैंने आपको शेयर किया हुआ है, ओके। तो मैक्सिमम क्वेश्चन उन पीपीटी में से आएंगे जो मैंने पढ़ाया है, या फिर ये जो मैंने शीट शेयर किया है ना, आपको शीट दिया है ना, शीट नंबर 1 to 8 है यस ना, सर। तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे। सर ये फ्री हैंड स्केच है उसका कुछ माप बीप नहीं है ना, मतलब अंदाजे से निकलना है ना? हाँ, अंदाजे से ही निकालना है, लेकिन एक रेशियो पता होना चाहिए ना। अभी देखिए जैसे फ्री हैंड में मेन क्या प्रॉब्लम होती है कि फ्रेंच कपलिंग, अभी जो कपलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, हाँ यहाँ पे देखिए, अभी ये जैसे 50 है, यहां से यहां तक 50 है ना, और यहां से यहां तक 60 है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर डिफरेंस दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये 50 है और ये 60 है ना। तो अभी ये देखिए इसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस दिख रहा है ना, कि ये लाइन इससे लंबी है ना, दिस लाइन लॉन्गर टू दिस लाइन, है ना, क्योंकि ये 50 है, ये 60 है ना। एक्चुअल में अगर आप मेजर करेंगे तो ये 60-50 नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस दिखना चाहिए कि आप अगर 10 mm की लाइन खींच रहे हैं, है ना,
तो उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, है ना। फिर उसका अगर 11 की लाइन आपने ड्रॉ किया तो वो डिफरेंस दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 10 mm की लाइन जो खींची है वो 12 mm से लंबी दिख रही हो, 12 mm से लॉन्ग दिख रही हो। वो आपको ध्यान में देना है कि फ्री हैंड ही बनाना है। लेकिन जो रेशियो आप अडॉप्ट करेंगे, मींस मेन क्या है कि आपका डायमेंशन के ऊपर ही चल रहा है। आप 10 mm का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, 20 mm का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, 15 mm का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो 10 mm का ऐसा नहीं हो कि जो 10 mm का सर्कल है वो 15 mm के सर्कल से ज्यादा लार्ज दिखे। तो वो कंसिडरेशन आपको करना है कि जो भी आपका डायमेंशनिंग वगैरह है वो प्रॉपर हो, ठीक है ना। 30 है, ये 30 है, ठीक है ना। फिर ये यहां से यहां तक कितना है, 18 है, ओके। तो ये आपका बोल्ट लगा हुआ है, तो ये बोल्ट है ना। तो ये क्या है, ये जो डायामीटर है ये कितना है, 18 का है, और ये 30 का है। तो अभी 18 और 30 में प्रॉपर डिफरेंस दिख रहा है ना, कि ये 30 है, ये 18 है, तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि 18 स्मॉल है और 30 लॉन्ग है। तो ऐसा रेशियो आपको रखना है ना। कि बस इतना ध्यान देना है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस दिखा रहे हैं तो वो लॉन्ग दिखनी चाहिए, और शॉर्ट डिस्टेंस दिखा रहे हैं तो वो शॉर्ट दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 5 mm लाइन आपने शो किया, वो क्या कहते हैं कि 6 mm 7 mm से लाइन से छोटी दिखे। इतना आपको फ्री हैंड में माइंड में रखना है, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है। सो स्टूडेंट्स, एनी अदर डाउट? और सर ये पेपर आएगा जो ऊपर से आएगा, क्या आप दोगे हमें? ये अभी डिसाइड नहीं है बेटा, है ना। यस अगर सर। अगर कॉलेज में बनाने को हुआ, है ना, हाँ तो मैं बनाऊंगा, है ना। देखिए दो पॉसिबिलिटी है। अगर क्या कहते हैं कि जैसे ईडीआर का कैसे हुआ था आपका, सॉरी ग्राफिक्स का कैसे हुआ था पेपर। शीट दिए थे सिर्फ हमने हाँ सी कॉलेज ड्रॉ, में। हाँ कॉलेज से क्वेश्चन पेपर बना था ना। अगर कॉलेज से क्वेश्चन यस सर। पेपर बना तो इतना समझ लीजिए कि जो मैंने आपको 1 to 8 शीट दिया हुआ है, और जो भी आपको पीपीटी शेयर किया हुआ है क्लास में, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन्हीं में से पेपर बनाऊंगा मैं। ओके सर। हाँ, और अगर ऊपर से पेपर बन के आता है, एमएस यानी बोर्ड से पेपर बन के आता है, तो उसके लिए भी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर शेयर किए हुए हैं, वो उसमें से आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे। ओके सर। ओके, सो